So, hello everyone. We have Ayushman Raghuvanshi, who has secured All India rank of 36 in Gate 23. Yes, All India rank of 36. It's a very big achievement. So, we will start his interview now. Okay, so Ayushman, please let us viewers know that who are you, from where you belong to, and how have you secured a AIR of 36, and what was your attempt number percentage and all those things, please. So I'll start by saying that I am Aishwan Raghuvanshi and I am from NIT Rourkela. I am currently I'm in final year of my BTech here in electrical. And as far as my attempt goes, it was my second attempt. I also gave an attempt in third year, but it was mostly based on self studies that I have studied during the my 3 years. After that attempt, I joined an academy, and even PhD sir was also there. So he basically, because I have joined an academy after I gave the 2022 attempt, and he also joined after that also. So he was also new at that time, and so I also contacted him and we talked. And as far as my journey goes, I should say that because uh, because of strict attendance here in our college, I could only give few hours to my preparation. So instead of being disheartened by that I can only give few hours and others are giving whole day, or other droppers are able to put in 8 hours a day, I was more focused on how much I can complete and how well I am in what I have completed. To be honest, that even though I got 36, I didn't prepare for communication, even though it has a huge weightage, but because of lack of time, I didn't prepare for that. But I didn't got disheartened that I didn't prepare for that. I instead focused on what I have prepared already. So I started revising the stuff that I have prepared, and I used an Academy Plus subscription for studying my lecture, because I have to manage with my college classes also. So I used to do the lectures during the night time. I used to do only two subjects, so that I was not affecting my college studies also, because I had to maintain a good CGPA to be eligible in, you can say, in research programs and all that, because we have to think about our future as well. Because if we just you can say, if it damage our CGPA in such a way that we won't be able to apply anywhere, then what would a gate score would do? So I had to manage that also. So I was, even though I was putting only 2 or 2.5 hours a day, I was consistent with it. I was not leaving any day in which I was not preparing for it. So I made sure that I was consistent with it. क्योंकि अगर हम consistent नहीं होंगे ना, तो बहुत जल्दी ही प्रिपरेशंस हमारी छूटने लग जाती है. शुरुआत में मोटिवेशन होती है कि चलो Hmm. करते हैं, अब कर लेंगे, और वो धीरे धीरे, अगर आप कंसिस्टेंट नहीं है तो वो छूट जाता है. क्योंकि आपको आदत बनानी पड़ती है. अगर आपने सही आदत है. नहीं बनाई तो बाद में बहुत ज्यादा विल पावर लगती है करने के लिए. Hmm. क्योंकि आप देखते हैं आपके दोस्त जो है, वो क्लास के बाद आके कहीं भी घूमने जा सकते हैं, आराम कर सकते हैं, पर आपको नहीं, आपको एक्स्ट्रा क्लास करके बैठनी पड़ेगी. तो अगर आपने आदत नहीं बनाई तो प्रॉब्लम बन जाती है. इसलिए मैंने पहले वर्क किया कि मैं एटलीस्ट अपनी आदत बना लूँ एक, कि हर दिन के इतने लेक्चर मुझे करने ही करने हैं, इतने आवर के. और फिर जब वो आदत डेवलप हो गई, फिर मैं धीरे धीरे कोर्स करता गया, और जितने खत्म हो गए, ऐसा नहीं कि मुझे पूरा ही कोर्स कंप्लीट करना है, जितने भी मेरे दिसंबर तक कोर्स खत्म हो गए, मैंने उन्हें खत्म किया. जनवरी में पूरा रिवाइज किया अच्छे से. जनवरी में कुछ एक्स्ट्रा नहीं पड़ा, जनवरी में पूरा रिवाइज किया और मतलब प्रैक्टिस की कोशिश की, और फिर फैब में तो एग्जाम दिया. ओके. सो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आपने बताया कि आप एनआईटी से. ओके. हम्म. So NIT might be having very good placements and good placement scenarios in core as well या as non-core sectors. Okay. तो आपको या गेट का मोटिवेशन क्यों आया? जैसे लोग जनरली क्या सोचते हैं कि मेरे को पीएसयू जाना है, मेरे को आईआईटी में पढ़ना है, या ऐसा हम्म. कुछ होता है जनरली उनका मोटिवेशन. लेकिन आप एक हम्म. रेप्यूटेड कॉलेज से थे, आपके पास अच्छी जॉब प्लेसमेंट हम्म. अपॉर्चुनिटीज भी थी, तो गेट क्यों? लाइक व्हाट वाज द रीजन? गेट बेसिक गेट बेसिकली इसलिए क्योंकि मुझे रिसर्च फील्ड में ही आगे बढ़ना था. मतलब मेरा एज इन प्लेसमेंट और वो फोकस नहीं था. मुझे फ्यूचर में रिसर्च में ही आगे काम करना था. तो उसके लिए गेट, हमें पता है कि इंडिया में अगर देखा जाए, फॉरेन में जाना अवॉइड ही कर रहा था, क्योंकि उसकी भी अलग अलग प्रॉब्लम्स होती हैं, उसकी भी सब उतना अफोर्ड नहीं होता है, सबके वो होता है. तो अवॉइड कर रहा था. तो मैंने कहा गेट इंडिया में अच्छा है रिसर्च के लिए, तो मैंने गेट दिया. अब इससे अलग अलग जितनी भी रिसर्च अपॉर्चुनिटी सारी खुल जाती हैं, तो हम उसमें आगे फर्दर में जा सकता हूँ गेट में से. और रही और बात प्लेसमेंट की, वो तो मिलते ही है कॉलेज में, होता हमारे यहाँ पे, उसमें अच्छी ऑब्वियसली बात आपके रैंक पे तो सारी अपॉर्चुनिटीज खुलेगी. इट इज अ वेरी वंडरफुल है. फैक्ट. ओके. सो मैं हाँ. केमिकल बैकग्राउंड से. ओके.
हम्म। सो मेरे को जस्ट जानना था, आई एम वेरी क्यूरियस टू नो दैट इलेक्ट्रिकल में गेट की डिफिकल्टी लेवल कितना होता है, बिकॉज इट इज समवट हायर देन केमिकल, दैट आई नो फॉर श्योर. Yeah. So what is the अब मैं difficulty level as well as what was your mindset before preparing for GATE? क्योंकि कभी बच्चा ऐसा सोचता है ना, जैसे मैं भी कभी एक स्टूडेंट था तो मैं सोचता गेट इज वेरी डिफिकल्ट एग्जाम, आई वोंट बी एबल टू क्रैक एंड ऑल दैट. बट व्हाट इज दैट परसेप्शन दैट यू हैड while preparing? तो वो क्या था? सो ऑल्दो मेरी ब्रांच इलेक्ट्रिकल थी, पर मैंने ईसी का पेपर दिया था, क्योंकि दोनों के सिमिलर होते हैं बहुत सब्जेक्ट। तो मेरा था कि क्योंकि मैं मशीन्स और उसमें उतना टाइम नहीं दे पाता, क्योंकि मैंने बताया था टाइम कंस्ट्रेंट भी था मेरे पास, तो मैंने चूज किया ईसी का, क्योंकि उसके थोड़े छोटे सब्जेक्ट। और रही बात गेट इलेक्ट्रिकल की, इस बार मैंने मेरे दोस्तों ने दिया था, जैसे कि बैचमेट्स ने दिया था, उन्होंने बताया था कि गेट इलेक्ट्रिकल बहुत टफ आया था इस बार कंपैरेटिवली लास्ट ईयर के। जबकि ईसी का ट्रेंड रहा है नॉर्मली टफ पेपर्स का, हाँ. पर ईसी का इस बार कंपैरेटिवली इजी आया था और इलेक्ट्रिकल का बहुत टफ आया था। और रही बात टफनेस और उसकी, तो मैंने मैंने उस पर फोकस नहीं किया, क्योंकि मुझे पता था, क्योंकि अगर मैं अपनी तरफ से पूरा करूंगा तो जितना मैं डिजर्व करता हूँ या जितना मेरी कैपेबिलिटी उतना तो मैं करूंगा ही ना। अब अगर पेपर टफ आता है, मुझसे नहीं हो पाता है, तो मैं सोच लूंगा अच्छा वही मेरे लिए था, मेरे शायद मैं उस लेवल का था ही नहीं। पर हमें अपना पूरा करना चाहिए, जितना जितना भी आप अपना, जैसे बाद में रिग्रेट ना हो कि यार मैं थोड़ी देर और ये कर लेता, या फिर यहाँ पे मैं इसकी जगह ये कर लेता, तो मेरा और अच्छा हो जाता। तो मेरा माइंडसेट ये था कि मैं अपनी तरफ से फुल दूंगा, जितना हो सकता है उतना दूंगा, और फिर रिजल्ट का एंड में देखेंगे। रिजल्ट मेरा मतलब ऐसा गोल नहीं था कि इतना रैंक लेके आना है इतना। मैं तो लास्ट टाइम तक भी मतलब अपना वो नहीं देख रहा था कि एंड में कि क्या रिजल्ट आएगा। लास्ट का जो जब एक हफ्ता रिजल्ट डिक्लेयर होने वाला था, मैंने ये सब भी सोचना छोड़ दिया था कि कैसी रैंक आएगी क्या रहेंगी, वापस नॉर्मल लाइफ में जितना वो था सब कुछ कभी। तो मेरा तो यही रहेगा कि आप रिजल्ट की टेंशन ना लें, जितना आप कर रहे हैं उसमें अच्छा करें। गेट बेसिकली आपकी जितनी प्रैक्टिस है और जितना आपने कॉन्सेप्ट याद कर रखे हैं, मतलब जितना आप कॉन्सेप्ट से फ्रेंडली हैं, उस हिसाब से गेट पेपर उतना टफ नहीं आता है। अगर आप देखें कि अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से आते हैं, तो गेट लेवल ऐसा नहीं है कि आपको जैसे जेई एडवांस होता है वो अलग लेवल पे जाके चेक करता है आपको। गेट वैसा नहीं है। गेट क्या करता है कि आपको देखता है आप कितने फेमिलियर हैं कॉन्सेप्ट के साथ, आप इंजीनियर आपने की है तो आप कितना इन सब कॉन्सेप्ट को जानते हैं। तो अगर आपने नॉर्मल प्रैक्टिस की है, आपने उनको अच्छे से रिवाइज किया है, तो आपका हो जाता है। आपने जो ये बात बोली ना कि रिजल्ट पे फोकस करिए, एम एस धोनी जो है ना वो मेरे फेवरेट क्रिकेटर है. ओके. सो उन्होंने भी एक इंटरव्यू में बोला था, इट इज द रिजल्ट दैट गिव्स यू द प्रेशर. सो इफ यू डोंट थिंक अबाउट द रिजल्ट, हम्म। यू वोंट बी इन द प्रेशर. एंड इफ यू आर नॉट इन द प्रेशर, यू कैन परफॉर्म रियली वेल. सो ये या काफी अच्छी बात मुझे लगी. ओके. सो आपकी जो भी जर्नी थी उसमें आपके पेरेंट्स, आपके फैमिली, इनका क्या रोल था वो भी मेरे को जानना. आपके फ्रेंड्स का क्या रोल था, आपके टीचर्स मेंटोर्स का क्या रोल था, और एक छोटी सी चीज कि आपने जब आपका हम्म। रिजल्ट देखा तो आपको कैसा लगा, हम्म। और आपके फैमिली को जब आपने बताया तो उनका रिएक्शन क्या था, वो भी मुझे बात जानना है. सो तो मेरे पेरेंट्स का रोल था बेसिकली रिसर्च एज इन इंडिया में अभी, क्योंकि इंडिया का इंडियन सोसाइटी का माइंडसेट थोड़ा अलग है। वो फोकस करते हैं कि बच्चा जैसे ही जैसे बीटेक हो तो जॉब हो जाए। तो इस पर्सपेक्ट में मेरे फादर बहुत अच्छे थे। उन्होंने मतलब कभी मुझे ये नहीं कहा कि तुम्हें बेटा जॉब करनी है। उन्होंने कहा जो तुम्हारा मन करे वो करो, अगर तुम्हें रिसर्च में जाना है तो फैमिली की तरफ से फुल सपोर्ट है, तुम रिसर्च में ही जाओ, तुम पैसों की या उसकी टेंशन मत करो। तो उस मेरे फैमिली में मतलब मेरे फादर और मदर का इसमें बहुत अच्छा सपोर्ट रहा। रही बात मेरे फ्रेंड की, तो मेरा एक बहुत क्लोज फ्रेंड है शिवम पांडे, तो जस्ट मेरे साइड में रहता है। तो उसने मतलब उसकी और मेरी जर्नी बहुत हद तक सेम थी। वो भी मतलब उसने भी शुरुआत में बहुत स्ट्रगल किया, मतलब क्या कहते हैं अच्छे पोजीशन में आने के लिए। मतलब हम दोनों ने, क्योंकि उसने मेरे को देखा मैंने उसे देखा, तो वो मुझे एनकरेजमेंट देता था, मैं ऐसे एनकरेजमेंट देता था। होता है ना कि अगर आप किसी के साथ प्रिपेयर कर रहे हो बैठ के, तो वो जो सिनर्जी होती है ना प्रिपेयर करने की, उससे भी आपको बहुत एनकरेजमेंट मिलता है। तो मैं तो एडवाइस करूंगा कि अगर कोई प्रिपेयर कर रहा है गेट के लिए, तो एटलीस्ट मतलब अगर हो सके, ऐसा नहीं कि अगर हो नहीं, पर अगर हो सके तो अपने दोस्तों के साथ प्रिपेयर करो। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि अगर आप लो फील कर रहे हैं, तो वो आपको थोड़ा मतलब मोटिवेट भी कर सकते हैं। अगर वो लो फील कर रहे हैं, तो आप उन्हें मोटिवेट भी कर सकते हैं। और उसके बाद क्या, हाँ, आपके पेरेंट्स को उसके बाद कैसा आपने लगा क्या जब पूछा आपने था? उनको रैंक बताई? हाँ, पेरेंट्स को तो आपको तो पता है, इस बार आईआईटी कानपुर में एकदम रिजल्ट आ ही नहीं रहा था। तो मैं 4 बजे बैठा था रिजल्ट देखने के लिए, पर आया नहीं, खुला ही नहीं, खुला ही नहीं। फिर 4 से 7 बज गए, खुला नहीं। फिर मैं चला गया बाहर कि थोड़ा फ्रेश हो जाता है, क्योंकि बहुत देर से कंप्यूटर के सामने बैठे हुए थे। फिर भी खुला ही नहीं, 8 बज गए, खुला नहीं।
तो फिर जब मैंने देखना बंद कर दिया तो मैंने शिवम को दे दिया था कि वो देख ले, और साक्षी को दे दिया था कि वो दोनों देख लें कि उनके आंसर खुल जाए। तो फिर एकदम खुला रिजल्ट तो शिवम आता है मेरे रूम में एकदम भागता भागता, और कहता है कि यार 36 आ गई। एकदम मैं इतना शॉक, मतलब मैं बहुत ज्यादा शॉक में आ गया था कि ऐसा, मतलब बिल्कुल एक पॉइंट को तो लग ही नहीं रहा था ये सच से झूठ है क्या, मैं सो रहा हूँ क्या। एकदम पूरा दिमाग ऐसे चकराने लगा था। फिर घर पे एकदम पापा को कॉल किया, उन्हें बताया, तो पापा को भी विश्वास नहीं है। वो पूछते हैं अरे मजाक तो नहीं कर रहा है। मैंने कहा नहीं नहीं सच्ची में ऐसे ही हो गया। और कहा सच में हो गया है। कहा हाँ सच में हो गया। फिर उन्होंने शिवम से बात की, वो शिवम से पूछते हैं कि ये मजाक तो नहीं कर रहा है कि सच में ही है क्या इसकी। हम उसने बताया हाँ हुआ। एकदम पापा भी इतना खुश हो गए थे। फिर एकदम, क्योंकि वहाँ पापा सब रिलेटिव्स के साथ भी थे, तो एकदम सबके बहुत ज्यादा फोन आने लगे। फिर तो धीरे धीरे वो सिंक इन होने लगा। पर शुरुआत का मोमेंट तो बहुत यूफोरिया होता था एकदम, बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। बढ़िया। तो कभी अभी जैसे आपको कोई बोलता होगा ना आपका दोस्त, अरे AR 36, AR 36, तो कैसा, मतलब कैसा लगता होगा नहीं आपको कि अरे अचानक से, लाइक बिफोर द रिजल्ट्स नाइट यू वर लाइक अ हम्म। नॉर्मल गाय who is good in his हम्म। academics, who is performing really well and managing each and everything. But after the result night, suddenly you are all India rank 36. So that is a phenomenal change that you have to take place, and you have to accommodate या that change in your life also. कि okay, हाँ, okay, हाँ। I have did something really well and I will utilize it to the best level. Yeah. या Okay. तो So, जैसे कि हाँ हाँ प्लीज। हाँ, तो मैं पहले, मतलब आप मुझे एम्बीवर्ट कह सकते हैं। मैं उतना बच्चों से उतना खुल के बात नहीं करता, मतलब जो होता है कि जैसे हम सभी आते हैं, वो इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन जो होती है हमारी 12th 11th की, वो सबको एम्बीवर्ट ही बना देती है, इंट्रोवर्ट या एम्बीवर्ट। एक्सट्रोवर्ट तो मुश्किल ही कोई रह पाता है। तो फिर मतलब नॉर्मल जैसे चलता है, क्लोज फ्रेंड थे उनमें बातचीत चल रही है, उससे ना ज्यादा आगे बात किसी से हो रही है कितनी। पर जैसे ही ये हुआ, फिर तो इतने सारे लोगों का मतलब एकदम इंटरेक्शन बढ़ गया, एकदम सोशल, एकदम यहाँ से सोशल एकदम इंटरेक्शन यहाँ पहुंच गया। फिर सब सब कांग्रेट्स कर रहे हैं उनको, फिर हैंडल करना, फिर उनसे मतलब रेसिप्रोकेट करना। तो फिर वो भी अच्छा लगा। और थोड़ा थोड़ा तो अच्छा लगता था जब भी, क्योंकि जब भी वो कोई AIR 36 बोलता था, वही जो जिस रिजल्ट आने पे जो खुशी हुई थी ना, वही एकदम फ्लैशबैक सा, मतलब वही थोड़ा सा उसका सेंस भी होता था। तो ये भी है। ओके और सो, वरना तो धीरे धीरे तो फिर वो नॉर्मल होता ही जाता है। हाँ हाँ, ओके सो मैं एक चीज पूछना चाहूंगा कि जब हम गेट की प्रिपरेशन करते हैं तो बोला जाता है इट इज द प्रोसेस एंड द हम्म। जर्नी विच टीचेस यू द मोस्ट, नॉट द रिजल्ट दैट काउंट्स। ओके, हम्म। रिजल्ट काउंट्स फॉर श्योर, वो आपको एक अच्छी जगह हम्म। पहुंचाएगा, ये सारी चीजें मैं मानता हूँ, और दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट आई नो ऑल्सो। ओके, हम्म। बट इस बारे में आपका क्या कहना है और आपका प्रोसेस कैसा था, और उस प्रोसेस के दौरान आप क्या सीखे? जैसे आपने एक चीज ये बताई कि आपने वो चीजों पे ज्यादा फोकस किया जो आपने की कर रखी थी, आपने वो चीज पे फोकस किया दैट व्हाट यू हैव हम्म। राइट नाउ एंड व्हाट इज द बेस्ट आउटकम दैट यू कैन प्रोड्यूस विद दैट पर्टिकुलर थिंग। वो एक चीज मुझे पता चली, लेकिन आपके प्रोसेस हम्म। में और क्या कहते हैं, जैसे आपने बताया बीटेक 4th ईयर में की, तो आपने टाइम मैनेजमेंट कैसे किया, ये सारी चीजें कैसे की, वो भी हमारे थोड़े व्यूअर्स को बताइए। तो टाइम मैनेजमेंट के लिए मैं हमेशा अपना शेड्यूल जैसे रात को ही बना के रखता था कि कल मुझे मैं टेंटेटिव गोल्स लिख लेता था कि इतने बजे क्लास होगी तो इतना बजे मुझे टाइम मिलेगा। तो इतने इतने लेक्चर देखना है मुझे। जैसे कि लेक्चर आप अन अकेडमी या किसी भी प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं, तो उनमें वो चॉइस देते हैं कि 2x पे देखना है, 1.5x पे देखना है। उसके हिसाब से आप मैनेज कर सकते हैं कि अगर आप लग रहा है टीचर ऐसा पढ़ा रहा है कि मैं 2x में निकाल सकता हूँ, तो वो वाले 1 घंटे के लिए स्लॉट में, या वन 1 आवर 30 मिनट के स्लॉट में आपने वो डाल दिया कि चलो आप ये देख लेते हैं। तो मेरा एक ये था कि मैं शेड्यूल हमेशा रखता था। अगर आपके पास शेड्यूल नहीं होगा ना, एक अगर आपने कहीं पेपर या किसी जगह लिख नहीं रखा होगा, तो दिमाग से वो निकल जाता है काम, और आप नहीं कर पाते। एंड में रात को याद आता है अरे ये भी तो करना था। तो एक शेड्यूल मस्ट है। चाहे आप उसे, आपको शुरुआत में लगेगा कि यार ये शेड्यूल तो हो ही नहीं पा रहा, तो आप थोड़ा सा कम कर लें, मतलब पर शेड्यूल मस्ट है। चाहे आप कुछ करें ना करें, पहले एक शेड्यूल जरूर प्रिपेयर करें। फिर उसके बाद जैसे मैंने पहले ही बताया था कि शेड्यूल हो गया, तो आप एक आदत बना लें उसे फॉलो करने की। अगर शेड्यूल बना लिया, आदत बना लिया ना, फिर आराम से सब स्मूथली होता ही जाता है। फिर तो क्योंकि क्लासेस भी आपकी रेगुलर होती है, ऐसा नहीं कि आपको एक दिन में 5 6 क्लास देखनी है, नहीं, एक दिन में 2 क्लास देखो। और क्योंकि एक ईयर का टाइम मिलता है ना, आराम से एक एक दिन में 2 क्लास देखो। सुबह उठ के 30 मिनट्स भी अगर आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ली, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा, 30 मिनट्स कर लो, PYQ लगा लो। अगर ऐसा लग रहा है कि यार ये वाले सीरीज के क्वेश्चन मुझे अच्छे नहीं लग रहे, ये डायरेक्ट PYQ लगा के देख लो। वो तो फाइनल अल्टीमेट गोल तो वही आएगा ना कि आपके गेट से क्वेश्चन बन जाए।
तो पीवाईक्यू करे सुबह 30 मिनट्स बस, और फिर नॉर्मल आपका दिन चलता गया। फिर आपने रात को आदत बना ली कि भाई इतने मुझे 2 लेक्चर किए, मैंने सो गया, मैं सुबह उठा पीवाईक्यू के चलता गया। और इसमें रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं तो कहूंगा क्वेश्चन प्रैक्टिस से ज्यादा इंपॉर्टेंट रिवीजन है। क्वेश्चन प्रैक्टिस, एक बार अगर आपके कॉन्सेप्ट सही हो जाते हैं तो गेट के क्वेश्चन बनने लग जाते हैं। वो मतलब इतने ज्यादा वो नहीं घुमाते आपको न्यूमेरिकल्स में, वो उनका पैटर्न सेम रहता है। अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है तो बन जाता है। तो रिवीजन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। और यही मुझे पिछली बार जब मैंने अटेम्प्ट दिया था, तो उसमें मैंने क्वेश्चन पे बहुत फोकस किया था कि मतलब मैं क्या कर रहा हूँ कि कोई भी चीज पढ़ता हूँ तो क्वेश्चन बना रहा हूँ। क्वेश्चन बनाना भी एक बहुत एडिक्टिव प्रोसेस है। अगर आप क्वेश्चन बनाते हैं और अगर बन जाता है ना, तो एक अंदर से लगता है यार ये तो आ गया हमें। तो वो एडिक्टिव प्रोसेस है। पर रिवीजन ऐसा नहीं। रिवीजन में अगर आप पूरा रिवाइज भी कर लेते हो तो ऐसा कुछ ऐसा डोपामीन हिट नहीं आता कि यार पूरा रिवाइज कर लिया। वो हिट नहीं आता, वो क्वेश्चन में मिलता है। तो इसलिए बच्चे क्या करते हैं, वो फोकस करते हैं कि भाई क्वेश्चन ही क्वेश्चन बना दो, क्वेश्चन ही क्वेश्चन बना दो। पर वो फिर ये होता है कि आपको जो आपने रिसेंटली पढ़ा है, जैसे 1-2 महीने का जो पढ़ा हुआ है, उसके तो आप क्वेश्चन बहुत अच्छे से बना दोगे। पर जिस चीज के छूट गए, जैसे 3-4 महीने हो गए जिसको पढ़े हुए, या और लॉन्ग टाइम हो गया, उसके क्वेश्चन तो बनने दूर, वो याद भी नहीं आती क्या चीज पढ़ी। तो इसलिए रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट। तो मैं फोकस करता था कि मैं प्रायोरिटी दूं क्लासेस को, फिर रिवीजन, फिर क्वेश्चन को। ये मेरा मतलब प्रायोरिटी लिस्ट रहती थी। और रही बात, जैसे आपने कहा कि इस प्रोसेस से जो आदत पड़ी अभी मुझे कि मतलब ये शेड्यूल बनाने की और ये सब करने की, इस अब आदत इतनी पड़ गई है कि अब जैसे गेट की प्रिपरेशन नहीं भी चल रही है, तो अब मुझे इतनी मतलब एक्स्ट्रा उसके पढ़ने की आदत पड़ गई, तो मैं अलग से जाके, अब जैसे एमआईटी के ओपन कोर्सवेयर पे वो रहते हैं कोर्सेज, अब मैं उन्हें देखने चला जाता हूँ, जिससे कि कुछ नया सीखता रहे। और वरना तो जैसे कि बहुत गेट में भी हमारे सब्जेक्ट्स आते हैं, लीनियर अलजेब्रा, प्रोबेबिलिटी, ये सब कॉन्सेप्ट हम गेट लेवल पे पढ़ते हैं। अगर आप इसे एमआईटी ओपन कोर्स वैसे पढ़ें, जैसे आपका गेट की प्रिपरेशन हो गई, आपकी आदत हो गई, तो आप उन्हीं को, पुराने सब्जेक्ट्स को और डीप लेवल में पढ़ो, तो आपको पुराने कॉन्सेप्ट और अच्छे से समझ में आने लगते हैं। जैसे कि आपने गेट लेवल पे कुछ पढ़ लिया, जैसे अब लीनियर अलजेब्रा ले लीजिए, गेट लेवल पे पढ़ लिया, अब अगर आप हिल्बर्ट रैंक का फिर पढ़ेंगे उसके ऊपर से, तो आपको जो नेक्स्ट लेवल अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, वो बहुत ही मतलब आपको बहुत हेल्प भी करेगी आगे इंटरव्यू में उस सब। तो ये भी। आपकी हाँ। बातों से ये तो मैं कन्विंस्ड हूँ कि आप रिसर्च में जाएंगे और बहुत तगड़ा फोड़ेंगे। लेकिन गेट के बाद में बहुत अपॉर्चुनिटीज खुलती है। पीएचयूज हो गए, बीआरसी में भी हाँ। आपको रिसर्च का अपॉर्चुनिटी मिलेगा, एनपीसीआर में भी मिलेगा, एंड ऑल दोस थिंग्स। हाँ। डीआरडीओ इवन वैकेंसी ला रही है, तो काफी ज्यादा हम्म। वैकेंसीज इस बार आने वाली है। प्लस आईआईटीज भी है, एंड आईआईएससी हम्म। बैंगलोर भी है। सो अकॉर्डिंग हम्म। टू यू एंड योर विल एंड योर विश, आपके प्रायोरिटीज क्या रहेंगे, एंड व्हाट इज योर थॉट प्रोसेस इन परस्यूइंग दैट? मेरा अभी तो फर्स्ट प्रायोरिटी आईएससी रहेगा, क्योंकि उसके बाद, क्योंकि वर्सेटैलिटी आप देखें तो आईएससी में सबसे ज्यादा वर्सेटाइल है। अगर आप बीएआरसी या वो भी कर रहे हैं, वो भी आपको कंस्ट्रेन कर देंगे कि अगर आपको इसी डोमेन में रिसर्च करनी होगी। तो क्योंकि अभी बीटेक में तो बच्चों को, जैसे मुझे भी कोई ऐसा इतना खास एक्सपीरियंस है नहीं कि अच्छा इस डोमेन में जाऊंगा तो मुझे अच्छा लगेगा। तो एटलीस्ट अगर मैं आईएससी में जाऊंगा, तो वहां पे मुझे एक्सप्लोर करने के लिए ज्यादा मिलेगा। तो उस एक्सपोजर से मैं फर्दर अपने वो डिसीजन ले सकता हूँ कि हाँ इस डोमेन में मुझे सही है, मैं इस डोमेन में करना चाहता हूँ। तो आईएससी का एक्सपोजर जो है वो इन सब ऑप्शंस में सबसे ज्यादा है। तो मेरी इसलिए फर्स्ट प्रायोरिटी आईएससी है, क्योंकि रिसर्च ओरिएंटेड, अगर प्लेसमेंट ओरिएंटेड है फिर तो आईआईटी का कोई वो नहीं, रिप्लेसमेंट नहीं। ये दोनों मतलब बहुत ज्यादा पैरेलल में कह सकते हैं कि प्लेसमेंट और रिसर्च दो बहुत अलग चीज है, उन्हें कंपेयर करना सही नहीं रहेगा। तो अगर रिसर्च में जाना है तो आईएससी बेस्ट है इंडिया में। पर अगर आपको प्लेसमेंट और उसके देखना है तो आईआईटी का कोई वो नहीं, क्योंकि उसमें आते ही हैं वो बच्चे, वही वहाँ का प्लेसमेंट का वो रहती है। पीयर्स आपके क्या करना चाह रहे हैं, जैसे पीयर्स आपके आईआईटी में प्लेसमेंट लेना चाह रहा है ना, तो वो उसी तरह आपको भी डेवलप कर देंगे, आपका पीयर आपको डेवलप कर देता है। तो वहीं आईएससी के पीयर्स रिसर्च करना चाह रहे हैं, तो वो मुझे उस एक्सपेक्ट में डेवलप कर देंगे। इसलिए मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी आईएससी रहेगा, फिर रिसर्च के लिए मेरा आईआईटी रहेगा, फिर आपके जितना भी गवर्नमेंट का वो है, जैसे डीआरडीओ या बीआरसी, उनका रहे। ओके, पीएसयू का मैंने नहीं, मतलब पीएसयू मैंने किसी में फिल नहीं किया, पीएसयू में मुझे जानता हूँ, it's क्योंकि very वो good to रिसर्च से hear from बिल्कुल our ही कट anchor ऑफ हो that he जाए। does not want to go to a PhD and do something in research fraternity and fields so that he can contribute to the society. It is really commendable. मतलब I have got to learn very good things from you, seriously. ओके, मुझे एक और चीज पूछना था आपसे, जैसे आईआईएससी में आप अपना मास्टर्स परस्यू करेंगे, सो आर यू थिंकिंग ऑफ गोइंग इन डायरेक्ट पीएचडी, or else you will pursue your masters first and then go for PhD in abroad, or else continue in IISc or any या other institute? या दैट्स व्हाट आई हैव
आई हैव प्लान्ड फॉर नाउ दैट आई विल डू माय मास्टर्स, आई विल सी कि कौन सी फील्ड मुझे मतलब, जैसे अब मैंने सिग्नल प्रोसेसिंग का सोच रखा है कि सिग्नल प्रोसेसिंग में जाना है, तो उसमें भी बहुत सारी डोमेन है। अगर कोई वीएलएसआई में जाएगा उसमें भी बहुत सारी डोमेन है, तो वो मैंने सोचा है कि पहले अभी इतना कर लूँ, फिर क्योंकि फिर मेरे को पीएचडी के कहाँ कहाँ ऑप्शन मिल सकता है, आईएससी तो है ही ऑप्शन, फॉरेन में भी जा सकता हूँ, मैं किसी कंपनी के लैब से भी पीएचडी कर सकता हूँ, और जैसे आपने कहा ना गवर्नमेंट की डीआरडी और ये सब, ये अपनी लैब से भी पीएचडी कराती है, मैं उन्हें भी परस्यू कर सकता हूँ, तो मेरे पास पीएचडी के लिए फिर इतने ऑप्शन हो जाएंगे। पर अभी अगर मैं इन सब में अप्लाई करूंगा या भी करूंगा तो मुझे पता ही नहीं होगा कि कौन सा बेटर है, कौन सा मेरे को सूट करेगा, तो इसलिए मैंने पहले एम टेक का सोच रखा है। इट इज रियली वेरी गुड टू नो कि हमारे पुष्पेंद्र सर का कम्युनिटी इतना वाइड स्प्रेड है और वो ऐसे लोगों को जानते हैं जिनके पास इतना हम्म। अबंडेंट नॉलेज है। ओके, सो मुझे ये पूछना था आपसे कि आप एक गेट रैंक तो ले आए। ओके, तो इसके बाद में हम्म। एक होता है पोस्ट गेट काउंसलिंग, जैसे आप वो रैंक का क्या कर रहे हो, उसका यूटिलाइजेशन क्या है, उसका परफेक्ट यूटिलाइजेशन क्या है। And देखिए, आपका तो ऑल इंडिया रैंक 36 है, सो यू हैव अ वेरी वाइड वेराइटीज ऑफ ऑप्शंस। ओके, सो यू हम्म। हैव टू पिक अमंगस्ट देम, and on the contrary, if you are having a very low gate score and all those kind of constraints in your career path, so for that also, how important is post grade counseling? पोस्ट ग्रेड काउंसलिंग आई थिंक इज एज इम्पोर्टेंट एज प्रिपेयरिंग फॉर गेट, क्योंकि इन टाइम जेई में जो जोशा होता है बहुत इजी काउंसलिंग होती है, उससे ज्यादा हाँ। इजी काउंसलिंग मैंने कहीं नहीं देखी, बस लिस्ट डालो वो सब कर देता है आपके लिए। पर सही गेट में इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स करते हैं, इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स करते हैं, सब में सेपरेटली अप्लाई करना है। फिर हाँ। आपके एम टेक हो गया, एम टेक रिसर्च हो गया, पीएचडी हो गया, ये सब ऑप्शन तो हो ही गए, फिर पीएसयू भी हो गया, फिर उनको कोप में करना, फिर जो उसके बाद फ्रीजिंग और वो वाला जो ऑप्शन आता है, वो और बहुत ज्यादा, मतलब बहुत लोग अपनी गलत चीज को फ्रीज कर दिया उसमें, क्योंकि वो रिवर्ट बैक नहीं कर सकते आप। और क्या कहते हैं, किसी कॉलेज का आपने फर्स्ट अपनी गलती से फर्स्ट प्रेफरेंस आपने वो कर दी रिजेक्ट, तो उसके बाद फिर उससे आपको मिलेगी नहीं कॉल। ये सब बहुत छोटे छोटे होती हैं चीजें, जो अगर पहली बार अगर काउंसलिंग करता है उसे तो पता ही नहीं चलेगा। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डिसीजंस भी हैं, ऐसा नहीं कि चलो दोबारा ले लेंगे, अब एक हम्म, साल बाद भी ले सकते हैं अगर आपको लेना भी होगा, फिर आपको ग्रेड के लिए प्रिपेयर भी करना होगा। तो वो ऐसा ही है कि अगर आपने पोस्ट ग्रेड काउंसलिंग नहीं ली, तो मतलब आपका जो गेट स्कोर होगा आप उसके फुल पोटेंशियल को वो नहीं कर पा रहे यूज, है ना। yes, तो yes, फिर yes. मैं तो कहूंगा कि अगर आपने गेट के उसमें भी थोड़ी अगर कम, अगर 90% आपने अपने एसेट उसमें यूटिलाइज किए हैं, क्या कहते हैं, गेट के प्रिपरेशन में, तो 110 उसको क्या कहते हैं फुल पोटेंशियल को रीच करने में एसेट अपने यूज करो। क्योंकि गेट स्कोर अगर आपने यूटिलाइज नहीं किया तो आपकी मेहनत तो खराब होगी ही होगी, एक साल आपको फिर से यूज करना। हम्म, काफी सही बोला आपने, एकदम मतलब टू द पॉइंट, एब्सोल्युटली करेक्ट बात बोली है आपने। थैंक यू फॉर दिस हम्म। एंड ओके, सो आई विल बी कंक्लूडिंग दिस इंटरव्यू, वी विल कीप इट हम्म। शॉर्ट ओनली, बट अगर आपको हमारे व्यूअर्स को कुछ भी और बताना हो, जैसे कि आपकी प्रिपरेशन के बारे में, आपकी जर्नीज एंड ऑल दैट तो हमने शेयर किया, बट एनीथिंग एल्स, वट एवर यू वॉन्ट टू शेयर विद आवर व्यूअर्स, यू कैन। हाँ, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अभी अभी प्रिपरेशन जो कर रहे हैं या जो भी काउंसलिंग कर रहे हैं, कि अभी का टाइम टफ लग सकता है, पर आगे ना सबके लिए कुछ ना कुछ अच्छा वेट कर ही रहा है, तो गिव अप ना करें और प्रिपेयर करते रहें और कंसिस्टेंट रहें। और ऐसे टेंशन ना लें कि अगर इस साल का गेट खराब हो गया तो फिर अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, अगली बार ट्राई करो। और खाली गेट से कुछ नहीं रखा, बहुत सारी चीजें हैं दुनिया में मतलब करने के लिए, तो ऐसे डिसहार्टन ना हो, ट्राई करते रहे जब तक फेलियर तब तक नहीं मिलती जब तक कोई गिव अप नहीं कर देता है। गिव अप जब करते हैं तब हमारे को फेलियर मिलती है, उसके ऊपर तो सब सक्सेस ही होती है। तो फिर मैं तो उनसे ही कहना चाहूंगा कि कभी गिव अप ना करो और मूव करते रहो आगे। Ayushman, thank you for giving this interview. I am getting goosebumps because आपकी पर्सनैलिटी काफी सही है, आपके वर्डिंग्स एंड वर्ड्स काफी सही है, एंड इट इज हिटिंग मी ऑल्सो एंड मोटिवेटिंग मी ऑल्सो टू इम्प्रूव. Okay, thank you, really thank you for giving this interview, and congratulations to you and your parents for getting an AIR of 36. Okay, so we'll conclude the interview over here. Thank you. या श्योर, थैंक यू फॉर द टाइम। ओके, सो ये थे आयुष्मान जिनका आया था ऑल इंडिया रैंक 36. ऐसे ही हमारे कम्युनिटी में बहुत सारे लोग हैं जिनका ऑल इंडिया रैंक सिक्योर्ड है एंड उनको अबंडेंट नॉलेज है कि क्या करना है, कैसे करियर डिफाइनिंग पाथ्स चूज करना है.
इसी के लिए मैं आपको कहूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए and make it to reach to everybody who is giving GATE and other competitive exams so that we can give them margdarshan and which can define their life. Thank you.